हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट मैं हूं के एपिसोड में खुशामदीद। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है समर साहब, जो कि डीटीआई में मार्केटिंग मैनेजर हैं। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं कि डीटीआई किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है वुमेन को एम्पावर करने में। तो जी समर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो समर साहब, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि डीटीआई किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है वुमेन को एम्पावर करने में। तो इसके ऊपर आप क्या हमें बताना चाहेंगे? जी श्योर। DTI डेस्कॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बेसिकली हम लोग वी प्रोवाइड टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्पेशली फॉर यूथ फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स। हमारे वो नौजवान जो किसी भी वजह से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते फॉर एनी रीज़न, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या सर्कमस्टांसेस, we provide them this opportunity and platform कि they can learn these technical and hands-on skills जो कि इस वक्त इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी है. So this is how they can earn a sustainable and a respectable livelihood for themselves. और at the same time हम लोग इंडस्ट्री की जो एक नीड है फॉर हैविंग a skilled workforce उसको भी एड्रेस कर रहे हैं. So that's how it complements the vision actually. And especially for women, it's really rewarding to see the kind of transformation that happens when these women gain these hands-on skills and work in the industry and contribute towards the economy of Pakistan. Exactly. So, in my opinion, I think Descon is playing a very important and crucial role in the society to empowering women, जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई और इंस्टीट्यूट इस तरह से कर रहा है कि उनको इस तरह से एम्पावर किया जाए, राइट? सो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि आपके एक्सपीरियंस में हैव यू सीन एनी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड वुमेन एंटरिंग टेक्निकल फील्ड्स? I would say yes, slowly but surely. There is a change, although resistances हैं, एक तो हमारे social barriers हैं बहुत सारे, एग्जैक्टली. but still there is a lot of improvement which is encouraging to see. चीज़ें slowly लेकिन change हो रही हैं. There is सही. acceptance in the organizations, especially वो companies जिन्होंने female technicians के साथ काम कर लिया है, more confident to hire more women. And मुझे लगता है कि जो results हैं they speak louder than the stereotypes of the society. So eventually there would be a change. We are seeing that. सो आई थिंक सो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरे ख्याल से कि सोसाइटी के अंदर इस तरह का एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि लाइक अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग. जो कि मर्द कर सकता है वो वुमेन भी कर सकती है, कि इस तरह से उनको साइड लाइन नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. और अच्छा, अगर हम अपने अगले सवाल की तरफ आएँ तो आप हमें कोई अपने एलुमनाइज़ की या अपने स्टूडेंट्स की कोई सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया डीटीआई के अंदर रहते हुए? और देखिए, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो व्हेन आई जॉइन DTI, I had this in my mind that I am here to bring change. But honestly, very quickly I realized when I met these students, especially the female students, that the drive is already there. All they need is the right platform and right tools in their hands, and they can do wonders actually. So मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो तो बहुत जल्दी ही शिफ्ट हो चुका था इन स्पेशली इन ख़वातीन को लेकर, क्योंकि मोस्टली आई थिंक सोसाइटी में ये अजम्पशन है, especially for the women working in unconventional trades, that these are probably hesitant, yeah, they need extra help while performing their jobs at work. But honestly, most of these women, they show up to prove something, you know, not just to others, but to themselves. एग्जैक्टली. So what makes them extraordinary is basically they know इनको अपने challenges को अपनी strength में कैसे convert करना है. So which makes them obviously different from others. So मुझे लगता है कि इसी सोच और इसी motivation के साथ when they come to any technical or training field, they are more focused, they are quick learners, and
the kind of and the level of discipline they show, that's really impressive. We do have a number of success stories, not just one, जहाँ पर हमारी ऐसी students हैं जो कि they're working with the reputed organizations in engineering firms of Pakistan, um, uh, and the journey is really inspiring actually, क्योंकि जब हम मेरे पास ऐसे students भी हैं, when they joined DTI, उन्होंने कभी किसी tool को अपने हाथ में उठाया और इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ था. Exactly. So if I remember, हमारी एक student हैं जिन्होंने she was working for fabrication department and she told me that उन्होंने पहली दफ़ा जब grinder अपने हाथ में उठाया तो her hands were shivering and she even started crying. But again, our trainers are trained to handle such situations and they don't let them give up. And today, mashallah, she is working as a professional fabricator in one of the renowned organizations of Pakistan. So, more than technical learning, it's the motivation, it's the determination जो उनके पास already होती है, Exactly. Which really speeds up the process and make them successful. लेकिन आई थिंक अकेली विल पावर ही नहीं बीच में काम करती, फिर आपको एक वो मोटिवेशन का रोल भी बीच में प्ले होना चाहिए जो कि DTI ने किया है स्टूडेंट्स को बिल्कुल, करने के अंदर. बिल्कुल आपकी जो पॉजिटिविटी है या विल पावर है उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है, एंड दे सर्टेनली नीड अ प्लेटफॉर्म व्हिच एक्चुअली DTI इज प्रोवाइडिंग देम. सो अगर हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि डिजिटल मीडिया का क्या रोल आप देखते हैं कि वो किस तरह से इनको एम्पावर कर सकता है और इनके लिए एक फ्यूचर में और इन द लॉन्गर रन अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकता है. आई थिंक नोबडी कैन डिनाई फ्रॉम दैट. जो डिजिटल लिटरेसी है आपकी, दैट इज़ द की दीज डेज, और इट्स नॉट इवन एन ऑप्शनल थिंग टू डू. आपको चाहे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है या अपना स्किल शोकेस करना है, या इवन यू जस्ट वांट टू स्टे इन्फॉर्म्ड, यू नीड द डिजिटल लिटरेसी. Exactly. So we are trying our best. We are working on it actually to blend our programs at DTI. अपने करिकुलम में हम ऐसे चीज़ें ऐड करें जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को डिजिटली लिटरेट कर सकें. इवन ऑन द बेसिक लेवल के ईमेल्स कैसे यूज़ करनी है, लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल करना है, या इवन ऑनलाइन सेफ्टी मॉड्यूल्स को कैसे पढ़ना है. सो थिंग्स लाइक दैट वुड प्रोबेबली मेक अ ह्यूज डिफरेंस. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि इवन इफ़ दीज वुमेन आर नॉट वर्किंग विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, और बेशक कोई नौकरी नहीं भी कर रही हैं, बट देयर डिजिटल प्रेजेंस वुड हेल्प देम टू own their identities as professionals. You have that confidence that I am a true professional, or I have this identity and I have digital presence on different mediums. So that would add credibility to their portfolios. They can connect to the right people in the relevant industry. Exactly. And most importantly, it's about visibility. And visibility certainly leads to the opportunities. So it's that important, I think. I think it's the visibility is everything Exactly. in this Today's this era, world, yeah, because it's totally digital. If you are not digitally present, so you may miss the opportunity. True, I think. True. So लोगों को आपको अप्रोच करना मुश्किल है. They don't know what you are, where you are. Exactly. जो स्किल सेट आपके पास है वो कैसे दुनिया तक पहुंचेगा. सो सरमा साहब, हमें बताइएगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही हैं वुमेन को एम्पावर करने में. आई थिंक जब ये ख़वातीन अपने घर से निकलती हैं फॉर एनी एजुकेशन और वर्किंग फॉर डिफरेंट कंपनीज, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोशल बैरियर्स क्रॉस करके आ रही होती हैं. सो देयर कम्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस जाके जहाँ पर वो काम करने आ रही हैं उनको सेफ़ और रिस्पेक्टफुल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ टू एक्सेल इन देयर करियर्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ज़रूरत है कि चीज़ें पॉलिसीज़ तक ना रहें सिर्फ. वी नीड मोर देन पॉलिसीज़, वी नीड एग्जीक्यूशन, वी नीड to create the cultures where they can thrive actually. So it's about the mindset shift जो कि हमें पूरी सोसाइटी को इकट्ठे मिलकर करना है. बेसिकली नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड
जिसमें हमने डिस्कस किया और समर साहब ने बड़ी हमें इंसाइटफुल बातें बताई कि किस तरह से वो DTI जो है इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है कि वुमेन को एम्पावर किया जाए और किस तरह से उनके अगले इनिशिएटिव्स हैं, क्या गोल्स हैं, और कुछ उन्होंने अपनी एलुमनाइज की सक्सेस स्टोरीज भी हमें बताई। सो हम इस चीज़ को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।